جو وراثت میں ملی ہے اس میں ساری جو ہیں وہ اسی پالیسی کی ہے جو PDP سرکار نے اور محبوبہ مفتی کی سرکار نے 2015 اور 18 کے درمیان کی ہے، اور اس کا آگے جو رینیول ہوتا ہے یا اس کی کنٹینیوٹی ہے وہی ہے۔ جہاں تک ان کو خدشات ہیں کسی اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ کے، اگر آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو آپ ان کو ہمارے منسٹر صاحبان ضرور کر سکیں، اور ان کے جو فگرز ہیں ان کو ہم ٹوٹلی چیلنج کرتے ہیں۔ ایسی کوئی فگر ہمارے پاس دستیاب نہیں ہے کہ جو بیک ڈور سے ہوئی ہو۔ ان کی مثال ہم بہت دے سکتے ہیں کہ ان کے دور میں کتنی بیک ڈور انٹریاں ہوئی ہوں، اینڈ ود پروف، اس میں صرف ہم ہی نہیں۔ بات ہے ایک تو آپ نے ہمارا سب کچھ ختم کر دیا، مجھے تو صحیح میں واقعی میں مجھے اپنے نوجوانوں کے لیے رونا آتا ہے۔ آپ نے ان کی نوکریاں ختم کری ہیں، آج ہمارے نوجوان ڈرگس کا شکار ہو رہے ہیں۔ آپ نے ان کے لیے سارے راستے بند کیے ہیں اپنے جذباتی نعروں کی وجہ سے۔ آپ نے کہا جموں کشمیر میں کوئی ہندوستان کا جھنڈا نہیں اٹھائے گا، اس کی وجہ سے ہمارا اسٹیٹ چلا گیا ہے۔ آپ نے اسٹیٹ کے ٹکڑے کروائے، 370 آپ نے ختم کروایا، 35A آپ نے ختم کروایا، یہاں کی نوکریاں آپ نے ختم کرائی، بینک میں کتنے سارے لوگ لگے ہیں، وہ تو کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں ہوئی۔ ایک MLA کے 4 رشتہ دار اس میں لگے ہوئے، آپ کے سارے جتنے بھی ریلیٹیوز ہیں، جتنے بھی پیر صاحبان ہیں وہ اس میں لگے ہوئے ہیں، KVIV میں۔ تو یہ سب چیزیں پھر آپ ہی درست ہوگی، تو مہربانی کر کے میری بہن یہ ٹھیک نہیں لگتا ہے، آپ کو تھوڑا سا سنبھل جانا چاہیے۔ DB لائیو جموں کشمیر میں آپ کا سواگت ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ جموں کشمیر حکومت نے اپوزیشن کی جانب سے بھرتی سے متعلق اور آؤٹ سورسنگ سے متعلق لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے یکسر مسترد کر دیا ہے۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ تمام مستقل اور باقاعدہ سرکاری اسامیاں جو ہے میرٹ کے بنیادوں پر پبلک سروس کمیشن اور سروس سلیکشن کے بورڈ کی جانب سے پور کیے جا رہے ہیں۔ مزید پیش ہے ہماری یہ خصوصی پریس کانفرنس، تو ان کا ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ جموں کشمیر سرکار، ہماری سرکار نے ایک ٹرانسپیرنٹ اور شفاف طریقے سے میرٹ بیسڈ قانون کے ضابطے کے تحت بھرتی کا ایک عمل شروع کیا ہے جب سے ہم 2024 میں سرکار میں آئے ہیں، اور اسی طے شدہ طریقے سے رولز کے مطابق جو ہے مرحلہ وار طریقے سے فیز مینرز میں ہم نے اپنی ریکروٹمنٹ ایجنسیز کے ذریعے ان اسامیوں کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ پروسیس بالکل ایک ٹرانسپیرنٹ نظام سے کے ذریعے ہو رہا ہے۔ آج وہ بات نہیں ہے جیسے پہلے مال پریکٹسز ہوتی تھی، پیپر لیک کی بات ہوتی تھی، لسٹ واپس ہوتے تھے، وہ سب جو تجربے پہلے ہم نے دیکھے ہیں وہ سب آج آپ کو دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے۔ بالکل شفاف طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بغیر کسی ارریگولرٹی کے ہم جو ہے ریکروٹمنٹ کا پروسیس آگے لے سکیں۔ اسی سلسلے کو آگے لیتے ہوئے لگ بھگ 40,000 اسامیوں کو پر کرنے کا جو ہم نے ایک مشن شروع کیا ہے اس کو بہت جلد انجام دیا جائے گا، اور ایک بالکل شاف و شفاف طریقے سے وہ کیا جائے گا۔ جہاں تک یہ اس جو غلط فہمی ہے، جو بدعنوانی ہے، جو لوگوں کے ذہنوں کو خامخواہ کنفیوژن میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے آؤٹ سورسنگ کے حوالے سے، اس کا جو اگر بنیاد آپ دیکھیں یہ کب شروع ہوا ہے، تو جو موجودہ پوزیشن جو ہم کو وراثت میں ملی ہے، باقی چیزوں کے علاوہ جو ہم کو وراثت میں پچھلی سرکار جو PDP خاص کر جو ہم پہ نشانات کستی رہتی ہیں اور بے بنیاد طور پہ کستی رہتی ہے، ان کی وراثت جو ہم کو ملی ہے، جیسے انہوں نے ہمیں 370 سے محروم کرایا، ہمیں اسٹیٹ ہوڈ سے محروم کرایا، ہماری جو پوزیشن تھی پورے ملک میں وہ نہیں رہی، ہمارے اسٹیٹ کو 3 حصوں میں بانٹا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو آؤٹ سورسنگ کا جو نظام ہے یہ بھی انہی کی دین ہے۔ میں ان کو آپ کے ذریعے سے یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ سب سلسلہ جو ہے 2015 اور 18 کے درمیان لی گئی پالیسی کے نتیجے میں تھی۔ تب تک ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ اگر سیزن میں آپ کو جو ہے چاہے پلانٹیشن کا سیزن ہو، چاہے ایریگیشن کا سیزن ہو، چاہے باقی کام جو کرنے پڑتے تھے سیزنل طور پہ، تو ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس کو یہ اختیار ہوتا تھا کہ وہ سیزنل اپوائنٹمنٹس کرتے، لیکن انہوں نے وہ سارا نظام قلم کر کے ایک آؤٹ سورسنگ کا نظام اپنایا، اور اسی حساب سے جو ہے جو بھی بھرتیاں آج تک ہوئی ہیں اسی نظام کے ذریعے ہوئی ہیں، اور ہم نے وہ نظام ایز اے لیگیسی اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ کوئی نئی ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی ہے، جتنی بھی ریکروٹمنٹ جن کی وہ بات کرتے ہیں یہ 2024 ہمارے الیکشن سے پہلے اور حکومت بننے سے پہلے جو ہے سب تقرریاں ہوئی ہیں، اور کنٹینیوٹی بھی وہی ہے۔ ان کا یہ الزام ہے کہ ہم نے کوئی بیک ڈور انٹری کی ہے،
मैं वसूख से कहूँगा और मेरे साथी उसकी तस्दीक करेंगे, वो आपको अपने डिपार्टमेंट्स की और गवर्नमेंट की पूरी डिटेल देंगे। मुझे हुक्म हुआ कि मैं आपको इब्तदाई कुछ बातें तरफ इशारा कर सकूं। ये जो उनको खदशात हैं कि हमने कोई बैकडोर एंट्री की है, हम उनको वाज़ा तौर पे एक चैलेंज देना चाहते हैं कि अगर एक भी उनको कहीं से सबूत के साथ मिले कि गवर्नमेंट ने कोई रिक्रूटमेंट की हो, पहले ये भी समझना चाहिए और उनको तो ज़्यादा समझना चाहिए क्योंकि ये उन्हीं की देन है। रिक्रूटमेंट और आउटसोर्सिंग ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। रिक्रूटमेंट एक, जैसे मैंने पहले शुरू में कहा, एक बाज़ाब्ता ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही है। जो आउटसोर्सिंग का मामला है, ये ओवर एंड अबव द सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ एनी डिपार्टमेंट जिन लोगों को लिया जाता है, जैसे कि एक मिसाल है, मान लीजिए आपको हेल्थ डिपार्टमेंट में एक जगह पे एक टेक्नीशियन हो एक्सरे के लिए और आपको एक और मशीन वहाँ इंस्टॉल्ड हो और आपको पेशेंट की जो है कैपेसिटी जो है, जो फुटफॉल है वो बढ़ रहा है, तो उस सूरत में जो लोकल वहाँ का जो सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल हो या सीएमओ हो, वो आउटसोर्सिंग के लिए तब तक किसी टेक्नीशियन को ले सकता है जब तक उसकी रिक्रूटमेंट हो जाए, क्योंकि आप उस मशीन को और पेशेंट को तब तक इंतजार नहीं करा सकते। इसी तरह अगर आपका सीजन हो, आपको एग्रीकल्चर का सीजन लेना हो और आपको कहीं प्लांटेशन करनी हो, उस वक्त आप वेट नहीं कर सकते जब तक रेगुलर प्रोसेस हो जाए। वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है और वो उसी के साथ उनका जो है सर्विस पीरियड भी खत्म होता है। दे आर नॉट अ रेगुलर गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट। हैविंग सेड दैट, देयर इज नॉट एनी एग्जाम्पल दैट दे कैन से विद प्रूफ कि हमने कहीं से कोई बैकडोर की हो। ये एजेंसियां बाज़ाब्ता जेम पोर्टल से आती हैं, एक ट्रांसपेरेंट मेथड के जरिए आती हैं, उसमें हमको कोई दो राय नहीं है, एक टेंडर प्रोसेस के जरिए आती है, और ये हमको जो विरासत में मिली है इसमें सारी जो है वो उसी पॉलिसी की है जो पीडीपी सरकार ने और महबूबा मुफ्ती की सरकार ने 2015 और 18 के दरमियान की है, और उसका आगे जो रिन्यूअल होता है या उसकी कंटिन्यूटी है वही है। जहाँ तक उनको खदशात हैं किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के, अगर आपके भी कोई सवालात हो वो आप इनको हमारे मिनिस्टर साहब जरूर कर सकें, और उनके जो फिगर्स हैं उनको हम टोटली चैलेंज करते हैं। ऐसी कोई फिगर हमारे पास दस्तियाब नहीं है कि जो बैकडोर से हुई हो। उनकी मिसाल हम बहुत दे सकते हैं कि उनके दौर में कितनी बैकडोर एंट्रियाँ हुई हों, एंड विद प्रूफ। उसमें सिर्फ हम ही नहीं, वो ऑर्डर कोर्ट्स ये इस वक्त स्क्रूटनी भी है, और उसकी एजेंसियों ने भी जांच की है कि कितनी बैकडोर एंट्रियाँ हुई हैं। उसमें काफ़ी डिपार्टमेंटों का हम नाम ले सकते हैं, जेके बैंक का ले सकते हैं, खादी विलेज इंडस्ट्री का ले सकते हैं, इसी तरह बाकी जगह जो उन्होंने तकरीरें की हैं वो उस चीज़ का वो जवाब नहीं देते हैं, और आज तक उन्होंने कभी दिया भी नहीं है जो उन्होंने गलतियाँ की हैं, लेकिन इल्ज़ाम वो ज़रूर तराशते हैं। इसके अलावा मैं गुजारिश करूँगा सकीना जी से कि वो तफसीलन आपको अपने महकमा जात से बात करें। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जैसे हमारे ऑनरेबल एडवाइज़र साहब ने कहा है कि आउटसोर्स जो है ये कोई परमानेंट नौकरी नहीं है, ये एक टेम्पररी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है। और इस सरकार का, जिस सरकार की क़ियादत जनाब उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, एक वादा दिया है कि हम अपनी दूरी इक़्तिदार में 1 लाख नौजवानों को रोज़गार देंगे। उसके मुताबिक अगर आप फिगर चेक करेंगे, चाहे वो SSRP हो, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जो पोस्ट हमने आज तक रेफ़र किए हैं परमानेंट पोस्ट, उसमें मैं बात करूँगी 724 लेक्चरर्स जब ये सरकार बनी उस टाइम रेफ़र किया गया। 624 पोस्ट जो हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से रेफ़र किए गए हैं पैरामेडिकल स्टाफ के लिए। 900 डॉक्टर्स जो ऑलरेडी रिक्रूटमेंट बोर्ड से आए हुए हैं, अप्रूव होके आए हुए हैं, 500 उसमें इस वक्त काम कर रहे हैं, 400 जो है CID वेरिफिकेशन के लिए गए हुए हैं। क्योंकि मैं उन साहिबान को आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए समझाना चाहती हूँ, एजुकेट कराना चाहती हूँ कि आउटसोर्स जो है वो परमानेंट नौकरी नहीं है, और आउटसोर्स जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है टू मीट एक्स्ट्रा वर्कलोड जहाँ पे भी पड़ता है। जैसे नासिर साहब ने कहा है कि आपको एक्सरे टेक्नीशियन की ज़रूरत है, परमानेंट हमारे पास कहीं पे एक एक्सरे टेक्नीशियन है, वहाँ पे अगर खुद हेल्थ हॉस्पिटल्स में किसी को हायर करते हैं इसके लिए, ताकि एक्सरे टेक्नीशियन जहाँ पेशेंट आता है पेशेंट केयर में कोई लापरवाही ना हो सके।
हॉस्पिटल्स में जो सिक्योरिटी लगाई जाती हैं, जो सफाई कर्मचारी लगाए जाते हैं, वो सफाई कर्मचारी अब हम उसमें तो पूछ नहीं सकते हैं आपसे कि हॉस्पिटल वाले मुझसे पूछने तो नहीं आएंगे कि मुझे हॉस्पिटल को साफ़ करवाना है, मुझे सफाई कर्मचारी लगवाना है, इसमें आपकी परमिशन है कि नहीं है। वो अपने लेवल पे करते हैं, उनका अपना जो हॉस्पिटल का फंड होता है। दूसरी बात ये है कि ये जो आउटसोर्स स्कीमें हैं, ये सारी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। ये हमारे जम्मू कश्मीर की कोई भी यूटी की स्कीम नहीं है। एक चीज़ मैं उनको ये बताना चाहूँगी। दूसरा, जो आउटसोर्स फ्रेमवर्क जब इंट्रोड्यूस हुआ है, जैसे नासिर साहब ने कहा है, ये इंट्रोड्यूस हुआ है 2015 से लेके 2018 तक, नॉट बाय प्रीवियस गवर्नमेंट, हमारी सरकार ने नहीं किया है, उन्हीं मेहरबानों की सरकार के टाइम पे ये हुआ है। और उससे पहले 15 में डिपार्टमेंट्स कुड हायर, उस वक्त से करते थे डिपार्टमेंट अपने लेवल पे, कैजुअल लेबर लगाता था, सीजनल लगाता था, डेलीवेजर लगाता था, जिसकी वजह से यहाँ के नौजवानों को रोज़गार भी मिलता था और वो आगे कंटिन्यू करते थे। लेकिन बदकिस्मती से, यहाँ की नौजवानों की बदकिस्मती और उनके सरकार में आने की, हमारे लिए जम्मू कश्मीर के लोगों की बदकिस्मती, 15 में जो ये पावर थे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को कैजुअल लेबर लगाने की, डेलीवेजर लगाने की, सीजनल लगाने की, ये पावर्स विड्रॉ किए गए 2015 में। और 2016 में डिपार्टमेंट्स ने आउटसोर्स करना शुरू कर दिया है, एजेंसीज, और उनके ज़रिए आउटसोर्स होता है। 2017 में एक एसआरओ निकला है, जो एसआरओ 520, जिस एसआरओ का जो नाम है वो आप कहीं पे चेक करा सकते हैं, देख सकते हैं। 2018 में बजट प्रोविजन में आउटसोर्स्ड मैन पावर वाज इंट्रोड्यूस्ड 2018। इसी तरह जो ये फिगर बता रहे हैं 25,000, 26,000, 27,000, 28,000, ये भी इन्हीं मेहरबानों की देन है। ये लगे हैं 15 से लेके आज तक, वो आप फिगर देख सकते हैं, ले सकते हैं, उसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है। और ये क्या कह रहे थे कि अब हम पब्लिक में नहीं डालना चाहते, आप डालिए, लेके आ जाए पब्लिक में। ये फिगर जो 15 से लेके आज तक लगाए गए हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और हमने जो रिक्रूटमेंट बोर्ड को पोस्ट रेफर किए हैं ऑलरेडी, जब से सरकार बनी है तब से हम कर रहे हैं, और मैं उनको समझाना चाहती हूँ, अवेयर करना चाहती हूँ, एजुकेट करना चाहती हूँ। बाई आउटसोर्स परमानेंट मुलाजिम नहीं लिया जा सकता है। आउटसोर्स में आप न तो उसकी टीएडीए है आउटसोर्स वाले की, न तो उसका पेंशन है नई स्कीम के तहत, न तो पुरानी स्कीम के तहत, और न तो उसका जो ग्रेड पे होता है टीएडीए, न तो वो होता है, न इसको किसी स्कीम में पेंशन दिया जाता है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है, जो उनकी स्कीम्स हैं, चाहे वो समग्र हो, चाहे वो वात्सल्य स्कीम हो, आईसीपीएस स्कीम, चाहे वो PMAY की स्कीम हो, चाहे वो इसी तरह एग्रीकल्चर की कई स्कीम्स हो, चाहे वो आउटसोर्स ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स की स्कीम हो। आज तक हमारे जम्मू कश्मीर में ड्राइवर कितने लगे और कब लगे वो आप पता कर लीजिए। ऐसे झूठ बोलने से कोई चीज़ छुपती नहीं है। और हमने अभी यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि पब्लिक सर्विस को रेफर नहीं किए जा रहे हैं, आउटसोर्स पे लगाए जा रहे हैं। मुझे उनकी अक्ल पे तरस आता है। इतने बड़े ओहदे पे रह चुके हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की एक लाइल्मियत की अगर बात करेंगे, बात करना ये मेरे ख्याल से दुख की बात है और कुछ नहीं कह सकते, और लोगों को गुमराह करने की बात है। आप जाइए, जितने भी जीएमसीज हमारे पास हैं, वहाँ सफाई कर्मचारी लगे हैं, हमारे बच्चे लगे हैं। आप देखिए वो कैसे लगे हैं, किसने लगाए हैं, किस टाइम पे लगे हैं। एक तो आप कहते हो हम बच्चों के हमदर्द हैं, आपकी वजह से आउटसोर्स की तबाही, ये बीमारी हमारे जम्मू कश्मीर में आई है।
आप मुझे बताओ, जो पढ़ा लिखा जवान होगा, जो पढ़ी लिखी मेरी बहन होगी, PhD होगी, MA होगी, वो क्या हॉस्पिटल में सफाई के लिए कर्मचारी लगेगी? तैयार नहीं होते हैं। क्वालिफाइड बच्चे बेचारे, उनके साथ जुल्म हो रहा है, ओवर एज हो रहे हैं। और आपके टाइम पे जो बोर्ड्स की हालत थी, रिक्रूटमेंट बोर्ड्स की, वो तो इतनी खराब थी, कोई रिक्रूटमेंट होती नहीं थी बोर्ड के जरिए। जो आपने किए हैं बैकडोर अपॉइंटमेंट्स किए हैं। तो ये मैं कहना चाहती हूँ आउटसोर्स के बारे में। आउटसोर्स कोई परमानेंट मुलाजिम नहीं जाता है। जो भी परमानेंट मुलाजिम होता है उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट से अप्रूवल आती हैं, पोस्ट क्रिएट किए जाते हैं, उनको आप परमानेंट पोस्ट कहा जा सकता है। और ये जो आउटसोर्स हैं उनके पास ना कोई पेंशन है, ना कोई, ये हेड जो चेंज हुआ है, ये मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये एक सर्कुलर है, ये हेड जब चेंज हुआ है, कब हुआ है, इसको आप देखिए। ये इन्हीं मोहतरमा जो मैडम जी हैं, उन्हीं के एज चीफ मिनिस्टर के दौरान हुआ है। ये आप देख लीजिए, ये सर्कुलर भी आप कर लीजिए। ये सर्कुलर है 23/2/2018 का, 23/2/2018। ये आप देख लीजिए। इससे पहले जब 15 में इन्होंने किया है, तब असली मेन ऑर्डर जो है वो 15 में आया है, इन्हीं की गवर्नमेंट के दौरान। 25,000, 26,000 लोगों को गुमराह करने की बात है। एक तो आपने हमारा सब कुछ खत्म कर दिया। मुझे तो सही में, वाकई में, मुझे अपने नौजवानों के लिए रोना आता है। आपने उनकी नौकरियां खत्म करी हैं। आज हमारे नौजवान ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं। आपने उनके लिए सारे रास्ते बंद किए हैं अपने जज्बाती नारों की वजह से। आपने कहा जम्मू कश्मीर में कोई हिंदुस्तान का झंडा नहीं उठाएगा, उसकी वजह से हमारा स्टेट चला गया। आपने स्टेट के टुकड़े करवाए, 370 आपने ख़त्म करवाया, 35A आपने ख़त्म करवाया, यहाँ की नौकरियाँ आपने ख़त्म कराई। बैंक में कितने सारे लोग लगे हैं, वो आज ACB में केस है। ये मैं भी नाम नहीं पढ़ना चाहती हूँ। ये सारे जितने भी पीर बरादरी हैं वो इसमें दर्ज है। जितने भी हमारे पीर मोहतरम, उनके रिश्तेदारान हैं, वो सारे इसमें दर्ज है। और आज के IE की अगर बात करें, आज वो कहते हैं मैंने निकाल दिया। किसको निकाल दिया आपने? केस तो आज ACB में चल रहा है। आप मेहरबानी करके, हम इस ब्लेम गेम पे नहीं जाना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं, हमारी कोशिश है हमारा नौजवान आगे बढ़े, वो ड्रग्स का शिकार ना हो सके और ये सरकार उसके लिए कुछ कर सके। आपने तो अपने लेवल पे कुछ करा नहीं। आउटसोर्स आपकी मेहरबानी है, स्टेट हुड ख़त्म करना आपकी मेहरबानी है, हमारी ज़मीनों पे कब्जा करवाना आपकी मेहरबानी है। आपने सब कुछ किया, आप करो तो सब ठीक है। आप उस चोर मचाए शोर। ये देखिए बैंक में किस मेरिट का आपने ख्याल रखा, कौन सा मेरिट आपने अपनाया, ये नाम है इसमें दर्ज है, ACB में केस है। फिर आप ही इल्ज़ाम दोगे, आप ही बात करोगे, उस पर रोना आता है। आपने कौन सा मेरिट इस्तेमाल किया था जब बैंक में हज़ारों लोग लगे थे? कहाँ से मेरिट आया था? उस वक्त तो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई। एक MLA के 4 रिश्तेदार इसमें लगे हुए। आपके सारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी पीर साहिबान हैं, वो इसमें लगे हुए हैं, KVIV में। तो ये सब चीज़ें फिर आप ही दरस दोगे तो मेहरबानी करके मेरी बहन, ये ठीक नहीं लगता है। आपको थोड़ा सा संभल जाना चाहिए।